We'll be covering all the passwords of nuclear physics. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है? A highly radioactive source that emits beta particle is placed a few centimeters away from the detector as shown in figure 11.1. State the name of the particle which has the same mass and charge as beta particles. So name of the particle which has the same charge and mass as beta particle, तो ये इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं. Electrons are particles that have same charge as mass as beta particles. State and explain why the metal casing is in figure 11.1 is used. अच्छा, क्योंकि जो सोर्स है वो बीटा पार्टिकल्स को इमिट करती है, तो बीटा पार्टिकल्स वी डिस्कस अर्लियर के बीटा पार्टिकल्स जो होते हैं वो दे कैन बी स्टॉप बाय द पीस ऑफ पेपर एज वेल, ओ सॉरी बाय द फ्यू मिलीमीटर्स एल्यूमिनियम एज वेल. क्योंकि बीटा पार्टिकल एल्यूमिनियम की वजह से रुक जाते हैं, तो वी डोंट नीड के हम लोग बहुत ज़्यादा जो है रेड बॉक्स लें. वी कैन just use a metal casing to stop the beta particles from getting away on these sides that would नुकसान पहुंचाए. So State and explain why the metal casing is used as the source emits beta particles. It does not require all right. नेक्स्ट पार्ट में क्या बोलता है? स्टेट्स दैट कि हमारे पास जो है State and explain what happens to the number of particles detected in a minute as the radioactive source is moved a few centimeters away from the source. अच्छा जी, देखिए बीटा पार्टिकल की जो रेंज होती है अराउंड फ्यू टेंस ऑफ सेंटीमीटर्स. अगर मैं थोड़ा कुछ सेंटीमीटर्स दूर लेके जाऊंगा तो ऑल्दो सारे बीटा पार्टिकल्स नहीं आएंगे, तो द रेंज द count rate would slightly reduce. Count rate थोड़ा सा slightly reduce हो जाएगा. It would be reduced a little bit. ठीक है, count rate slightly reduce हो जाएगा. And जो है and less beta particles will reach. मूविंग ऑन, अगर मैं इसको 1 मीटर अवे ले जाऊं, ठीक है, आई मूव इट मोर देन मीटर अवे फ्रॉम द सोर्स, नो रेडियोएक्टिव रेडिएशंस would be detected as beta particles range is only few tens of centimeters in air. तो बीटा पार्टिकल्स जो है कुछ टेंस ऑफ सेंटीमीटर से आगे जा ही नहीं सकते. तो इफ आई मूव इट अराउंड 100 सेंटीमीटर्स बैक, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो नन ऑफ द बीटा पार्टिकल्स विल बी डिटेक्टेड, देयरफॉर उसमें कुछ भी डिटेक्ट नहीं होगा. ठीक है जी, दिस इज अगेन अ गुड क्वेश्चन. टेबल 10.1 contains details of the nature of some particles of alpha, beta and gamma radiations. नेचर हमारे पास अल्फा की दी है, got 2 protons and 2 neutrons. Charge is +2. Penetration stopped by a piece of paper. piece of paper से स्टॉप हो जाता है. ये हमारे पास जो है अल्फा पार्टिकल्स की जो है बारे में बात आ गई. whereas बीटा पार्टिकल्स की जो नेचर है, इट्स लाइक एन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज होता है, and then stopped by 5 millimeters of aluminum. Gamma की नेचर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. Gamma is an electromagnetic radiation. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है. गामा चार्ज इज 0, कोई चार्ज नहीं होता, एंड पेनिट्रेशन इज कैन बी रिड्यूस्ड बाय फ्यू सेंटीमीटर्स थिक लेड. कुछ सेंटीमीटर्स थिक लेड से इसको रिड्यूस कर सकते हैं, ऑल्दो इसको स्टॉप नहीं कर सकते. ठीक है जी, 6 मार्क्स फॉर टेबल, बट याद होनी चाहिए वैल्यूज. 6 नंबर मिल जाते हैं. ओके, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन सील प्लास्टिक बैग्स आर प्लेस्ड इन थिन प्लास्टिक बॉक्सेस. A conveyor belt takes the boxes close to the robot 60 source, which sterilizes the instruments.
This is shown in figure 10.1. Okay, जिस तरह वो एयरपोर्ट्स में वगैरह कन्वेयर बेल्ट होती है बिल्कुल वैसे ही है इंस्ट्रूमेंट्स हैं. देन देयर इज अ कोबॉल्ट 60 और ये स्टरलाइज कर देती है. The cobalt 60 is a radioactive isotope of cobalt that emits gamma radiation. Describe what is meant by isotopes. तो जब भी बात isotopes की करता है तो isotopes is basically atoms of same element with same number of proton and different number of neutrons. Moving on, suggest a property of gamma radiation that enables to sterilize the instrument in the bags in the boxes. Gamma एक high frequency radiation होती है. That's why they can kill the germs. इनकी high frequency and penetration is a reason कि ये boxes के अंदर जाके एक एक instrument में से germs को kill कर देती हैं. You guys know कि gamma radiation the cancer cells को भी किल कर देती है. विद दैट ये सारे के सारे सेल्स को किल कर देती है. तो गामा रेडिएशंस की जो कैपेसिटी होती है हाई फ्रीक्वेंसी दैट अलाउज देम टू पास थिंग्स. दे कैन पास थ्रू द मेटल. ठीक है, उसकी वजह से दे कैन लाइक एक्चुअली किल द जर्म्स, स्टेरिलाइज एंड किल ऑल द बैक्टीरिया. तो ये हमारे पास जो है बेनिफिट है. State why a source emitting only alpha particle cannot be used in this way, because alpha particles cannot like penetrate. Na, they cannot penetrate to the box. एक तो ये बॉक्स से पेनिट्रेट ही नहीं कर सकते. विद दैट दे हैव वेरी लेस रेंज भी नहीं होती तो ये रुक जाते हैं. ठीक है, तो ये अल्फा पार्टिकल्स में यूटिलाइज नहीं हो सकते. अच्छा, मूविंग ऑन. The half-life of cobalt 60 is 5.3 years. ठीक है जी. Explain why a source which half-life of 5.3 years minutes is unsuitable for use in this application. बोल रहे कि यार हमारे पास जो कोबाल्ट है 60 उसकी हाफ लाइफ 5.3 years है. एक ऐसी सोर्स जिसकी हाफ लाइफ 5.3 मिनट्स होगी वो क्यों अनसुटेबल होगी इस सिचुएशन के लिए 5.3 मिनट्स. अब देखो यार 5.3 मिनट्स में अगर कोई चीज़ हाफ हो रही है उसकी हाफ लाइफ 5.3 मिनट्स है, दैट मीन्स कि वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी. सो एक कन्वेयर बेल्ट है, बार बार इसमें से रेडियोएक्टिव सोर्स तो चेंज नहीं कर सकते ना. आई वुड एक्चुअली नीड कि ऐसी कोई चीज़ हो जो कि लंबे लॉन्ग टाइम के लिए हमारे पास जो है रेडिएशन देती रहे, जिसको हम लोग रीयूज बार बार कर सके एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें बाद में कहीं जाके इसको जो है चेंज करना पड़े. तो एक तो it would have to be changed a lot. Hence, we need a source that can be used over a longer period of time. थोड़ा सा टाइम चले तो चीज़, ताकि उसको जो है फिर हम लोग जो है यूज़ कर सकें. इस तरीके से अगर कोई चीज़ 5.3 मिनट्स में ऑफ हो जाती है तो आई थिंक दैट्स नॉट वेरी सुटेबल. मूविंग ऑन फर्दर. Giger and Marsden performed the experiment in which alpha particles were fired at a thin film of gold. Figure 10.2 shows an alpha particle scattering passing close to the nucleus of the gold atom. Explain why the alpha particle is deflected. अच्छा, अल्फा पार्टिकल क्यों डिफ्लेक्ट हो जाओ. एक तो देखिएगा ये न्यूक्लियस जो है ये पॉजिटिव होता है, अल्फा पार्टिकल इटसेल्फ पॉजिटिव होता है. तो आप एक्सप्लेनेशन में क्या लिख सकते हैं, सिंस बोथ आर पॉजिटिव they would be repelled by electrostatic forces of repulsion. Moving on. In the experiment, most of the alpha particles pass straight through the foil without deflection. First lecture में हम लोगों ने
अल्फा का ये जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और फिर जीएम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, हमने इसकी 3 रीजंस ऑफ ऑब्जर्वेशन और 3 ऑब्जर्वेशन को डिस्कस किया था. In the experiment, most of the alpha particle pass straight through the foil without deflection. Explain using ideas about the structure of the atom why this happens. तो भाई हमारे पास क्या वजह थी कि most of the alpha particles were able to pass through. आप बोलोगे यार atom is mostly empty with all the charge and mass, all the charge and mass concentrated in the center. क्योंकि एटम मोस्टली एम्प्टी है, एटम इज मोस्टली एम्प्टी, खाली एटम, और उसके सेंटर में छोटा सा मास और चार्ज है, तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर एबल टू पास थ्रू. जो बहुत करीब से गुजरे सिर्फ वो डिफ्लेक्ट हुए एंड वेरी फ्यू ऑफ देम बाउंस्ड बैक. तो अल्फा सारे के सारे मेजरली सीधे सीधे क्यों गुजर गए थे? बिकॉज atom is mostly empty and all the charge and mass of the atom is only concentrated in the center of the atom. अच्छा जी, अगले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन is a reaction that occurs in the sun and other stars. What is meant by nuclear fusion? तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? क्या था न्यूक्लियर फ्यूजन? When two small daughter nuclei combine to form a large parent nuclei, releasing a lot of energy. Nuclear fusion is when two or more smaller combine to form a large stable parent nuclei, releasing a lot of energy. तो न्यूक्लियर फ्यूजन में दो स्मॉल न्यूक्लियाई दे फ्यूज अप टू फॉर्म अ बिगर न्यूक्लियाई, एंड सिंस दो पॉजिटिव को आपस में जोड़ना होता है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी टू इनिशिएट and it also releases a lot of energy as well. Describe the nuclear fusion reaction that takes place in the sun. So, two hydrogen atoms combine to form helium. Combine to form helium. ठीक है, तो ये हमारे पास the nuclear fusion reaction that takes place in the sun. Okay, the star forms when the temperature of the large cloud of gas and dust increases and the cloud collapses inwards. Again, ये star formation का सवाल है. I would look into that जब हम लोग स्पेस कर रहे होंगे. ठीक है, temperature increase starts nuclear fusion reaction explained by the temperature of the star eventually reaches a steady value. बेटा ये दोनों चीजें जो है हम लोग स्पेस में बहुत डिटेल में देख रहे होंगे, तो we'll leave this part out for now. Moving on further. Radon 222 is an isotope of radon which undergoes a series of radioactive decays. Figure 7.1 is a diagram showing the proton number, atomic number of the nucleon number of the nucleus involved in the series of decay. The point P represents the nucleus of radon. अच्छा जी, point P is basically the nucleus of radon. So radon जो है हमारे पास, इसका जो mass है that's 222 and the proton number is 86. ठीक है जी. State 2 points which represents the isotopes of the same element. Okay. Same element के isotopes का मतलब है they would have same proton number. तो U और R दोनों का प्रोटॉन 82 है, तो U and R can be said as isotopes. T and Q भी are isotopes, ये भी isotopes हैं. ठीक है, तो U and R कह दूं, और आप चाहो तो ये भी कह सकते हो T and Q भी कह सकते हो, दे बोथ isotopes.
क्योंकि इन दोनों के प्रोटॉन नंबर्स जो हैं दे आर सेम प्रोटॉन नंबर्स, ठीक है, एंड दे डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर्स। डेफिनेटली प्रोटॉन नंबर सेम है, तो इन दोनों के अंदर जो है आप इनको आइसोटोप्स कह सकते हैं। अच्छा, different isotopes of the same element have different atomic compositions. State how the composition of their atoms is different. वो बोल रहा है different isotopes of the same element have different atomic compositions. अच्छा, state how the composition of their atom is different. So they have different number of neutrons. Moving on. The nucleus of radon-222 emits an alpha particle as a decay. ठीक है, alpha particle emit करता है. The radioactive decay of a single nucleus is random. Explain what is meant by random radioactive decay of the nucleus. तो आपको याद होगा रेडियो एक्टिविटी के बाद जब हम लोग रैंडम प्रोसेस डिस्कस कर रहे थे, तो इसका क्या मतलब है कि all particles, all atoms have equal chance to decay. And no one can predict which atom will decay by. एक बार तसल्ली से नोट्स को रीड कर लोगे तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके जो है कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। इन न्यूक्लियाइड नोटेशन radon 222 is written as this. When the nucleus of radon 222 emits an alpha particle, it decays to an isotope of polonium. Complete the decay equation for this decay. Okay. अब हमारे पास alpha का mass is 4 and the proton number is 2. If you balance it out, polonium को balance करने के लिए I would have to give 218 and it's going to be 84. तो ये हमारे पास जो है इसका decay equation बन जाएगा. State the name of the particle emitted as the nucleus of R decays to the nucleus of S. State the name of the particle emitted जब R से किस में कन्वर्ट हो जाए, S में कन्वर्ट हो जाए. अब देखें R से S में प्रोटॉन नंबर इज इंक्रीज बाय 1. From R to S, the proton number is increased by 1. और since the proton number is increased by 1, तो हमारे पास पार्टिकल जो इमिट होगा दैट्स गोना बी बीटा पार्टिकल. याद रखिएगा प्रोटॉन नंबर जब बढ़ता है तो जो पार्टिकल इमिट होता है दैट इज बेसिकली द बीटा पार्टिकल. हर बीटा पार्टिकल इमिशन में प्रोटॉन इंक्रीजेस बाय 1. ठीक है, हमेशा प्रोटॉन इंक्रीजेस बाय 1. प्रोटॉन ऑलवेज इंक्रीजेस बाय 1. बीटा इमिशन में प्रोटॉन इंक्रीजेस बाय 1. दैट्स द थिंग. हमेशा. ओके. Describe the change in the composition of nucleus of R as it decays the nucleus of S. Composition अब वही बात होती है कि it would have one more proton and one less neutron. Actually में जब भी कोई चीज बीटा इमिट करती है, व्हाट हैपेंस इज उसके अंदर का न्यूट्रॉन जो है इट कन्वर्ट्स इनटू अ प्रोटॉन. उस न्यूक्लियस के अंदर का न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू अ प्रोटॉन. बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जन ऑफ न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो जो चीज बनती है उसमें प्रोटॉन नंबर एक ज्यादा नजर आ रहा होता है. एंड डेफिनेटली क्योंकि मास सेम होता है तो अब जब आप माइनस करोगे you would see कि न्यूट्रॉन नंबर एक कम हो जाएगा. And that's always the case whenever there is a beta particle being emitted. Moving on. Two isotopes of carbon are carbon 12 and carbon 14. One of these isotopes, carbon 14, undergoes radioactive decay. State what is meant by radioactive decay. What is meant by radioactive decay? Radioactive decay क्या होता है? It is the phenomena of emission of radioactive radiations from the nucleus of an atom because of insufficient binding forces.
It is the phenomena of emission of radioactive radiations from the nucleus of an atom because of insufficient binding forces. बाइंडिंग फोर्सेस इनसफिशिएंट होने की वजह से जो भी इमेजन होती है अल्फा बीटा गामा की, इस फिनोमिना को हम लोग रेडियो एक्टिव डीके या रेडियो एक्टिविटी कहते हैं. ओके. कार्बन 12 has a proton number of 6 and nucleon number of 12. Complete a table for a neutral atom of these of each of these isotopes. So carbon 12 में proton number 6 है. Neutron would definitely be 6 क्योंकि carbon 12 total 12 है. Electron 6 होंगे. Atoms of same element proton इसमें भी 6 ही होंगे. Neutron won't be 6 but इसमें 14 minus 6 which will be equal to 8. Electrons still 6. ये आपके पास आ गया. A sample of carbon 14 is contained in a thin aluminum container of thickness 0.2 millimeter. Radiation from the sample is detected outside the container. ठीक है जी. Radiation from the sample, ठीक है. Aluminum container से outside आ रही है. When the thickness of aluminum is increased to 6 millimeter, no radiation from the sample is detected outside the container. State the type of radiation which is stopped by increasing the thickness of aluminum. Aluminum की thickness बढ़ाने से the type of radiation that's going to be stopped is going to be the beta particles. इस बात को समझिएगा. अगर इसका आंसर यहाँ पे अल्फा होता तो अल्फा तो इतने मिलीमीटर थिक एल्युमिनियम से भी पास नहीं कर सकता था ना, तो वो कभी डिटेक्ट ही नहीं होता. बट उस वक्त कुछ ना कुछ रेडिएशन आ रही थी, बट जब मैंने एल्युमिनियम की थिकनेस बढ़ाई तो रेडिएशन कम हो गई. दैट मीन्स इसके अंदर बीटा पार्टिकल्स प्रेजेंट थे एंड देयरफॉर एल्युमिनियम की थिकनेस बढ़ाने से वो पार्टिकल्स स्टॉप हो गए एंड द रेडिएशन फ्रॉम द डिटेक्टर आउटसाइड द कंटेनर वुड सीम टू हैव डिक्रीज्ड. मूविंग ऑन. Explain how you know that a sample does not emit one other type of radiation. So again, if radiation would have been alpha, it would be stopped by 0.2 millimeter thick aluminum. Whereas if it would have been gamma, अगर वो गामा रेडिएशन होती, there would be reading after increasing thickness to 6 millimeters. अच्छा. All the isotopes of the gas radon are radioactive. सारे isotopes of radon gas are radioactive. State one similarity and one difference between the different isotopes of radon. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करो. सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस. इस क्वेश्चन के बाद आई वुड सॉल्व पेपर जिसमें वो जो है हम एक स्पेसिफिक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन वी वुड हैव टू सॉल्व वन अदर क्वेश्चन जो बहुत अच्छा है क्लाउड चेंबर का. देन विल कॉल इट अ डे. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है. इट्स वेरी गुड. State one similarity and one difference between the nuclei of two different isotopes of radon. Similarities: same proton number. Difference: neutron number. The isotope of radon 222 decays by alpha particle emission to an isotope of polonium. The proton number of polonium is 84. Determine the number of neutrons in the atom of polonium isotope. अच्छा. Radon
222 ब्रेक डाउन हुआ, एक अल्फा पार्टिकल बनाया और साथ एक पोलोनियम बनाया जिसका मास मुझे नहीं पता, बट मुझे इसके प्रोटॉन नंबर पता है। तो अगर मैं, और डेफिनेटली अगर पोलोनियम के 84 है और अल्फा के 2 है तो ये 86 हो गए। ठीक है, बात को गौर से समझिएगा, ये बहुत अच्छी बात है। अगर रेडॉन का मास 222 है एंड इट कन्वर्ट्स टू अल्फा, तो अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं तो आई वुड गेट द मास ऑफ पोलोनियम एज 218। मास ऑफ पोलोनियम जो हुआ वो तो 218 हो गया बिकॉज ऑफ अल्फा पार्टिकल इमिशन। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन्स निकालना चाहूँ पोलोनियम के, तो 218 जो इसका मास है उसमें से 84 माइनस कर दूंगा, आई वुड गेट द प्रोटॉन नंबर्स ऑफ पोलोनियम एज 134। दैट्स वन थिंग। Moving on. Describe the number of protons in the atom of radon 222. Radon 222 में हमारे पास 86 प्रोटॉन्स होंगे। बाय आई जस्ट एडेड द अल्फा पार्टिकल क्योंकि डेफिनेटली प्रोटॉन नंबर कंजर्व होता है। अगर अल्फा 2 है, पोलोनियम 84 है, देन द रेडॉन शुड हैव बीन 86. 86 would have been the proton numbers of radon. Going on. Describe how the neutral atom of helium differs from an alpha particle. देखें, अल्फा और हीलियम में कोई खास फर्क नहीं है, rather than alpha particles are charged. Alpha particles are charged. Alpha particle charge होते हैं, ठीक है जी, they are charged. ये एक मेजर जो है रीजन है उनके। ओके, moving on further. In an experiment to collect a small quantity of helium, a sample of radon 222 is enclosed in an inner glass tube, which has a very tiny wall, very thin wall. ठीक है, अच्छा। हमारे पास in an experiment to collect a small quantity of helium, a sample of radon 222 is enclosed in an inner glass tube which has a very thin wall. Figure 10.1 shows the tube placed inside the container that is initially evacuated. Both of the container and the inner glass tubes are sealed. As the radon decays, alpha particles pass through the wall of the inner glass tube. Okay, figure 10.2 shows how the total number of alpha particles produced by the radioactive decay of radon 222 changes with the time passes. Okay, जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो है निकलते जा रहे हैं। ठीक है, इनिशियली अल्फा पार्टिकल निकले, फिर अगेन निकलते जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा उन्होंने ग्राफ दे दिया है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस इन 7.6 days. देखिए यार, मसला सारा ये है कि जितने रेडॉन पोलोनियम में कन्वर्ट होंगे उतने अल्फा पार्टिकल निकलेंगे। ये तो असूल है, ठीक है, क्योंकि ये आपने ऊपर इक्वेशन देखी कि जितने रेडॉन पोलोनियम में कन्वर्ट होंगे सेम अमाउंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स विल बी इमिटेड। सबसे पहले पार्ट में दे आर आस्किंग यू के 7.6 days में कितने अल्फा बनेंगे। तो आप हमारे पास 6.24687124 7.6 days में आई थिंक अराउंड 2.1 10 to the power 10 अल्फा पार्टिकल्स बन जाएंगे। ठीक है जी। Initially, there are 2.8 times 10 to the power of 10 atoms of radon in the inner glass. As each radon 222 decays, it produces an alpha particle. बताया हुआ भी है कि हर radon decay होने के बाद एक alpha particle emit करेगा। Calculate the number of radon 222 atoms that remains after 7.6 days. अगर मेरे पास बेटा 7.6 days के बाद 2.1 into 10 की पावर 10
अल्फा इमिट हो गए हैं, इसका मतलब 2.8 10 की पावर 10 में से इतने रेडॉन तो कन्वर्ट हो चुके हैं, एंड द रिमेनिंग वन वुड बी 0.7 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 10। मैंने 2.8 टाइम 10 टू द पावर 10 में से माइनस किया 2.1 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 10। आई गॉट दिस आंसर। मैं एक बार फिर अपनी बात को समझाना चाहता हूँ। इनिशियली हमारे पास 2.8 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 10 एटम्स थे रेडॉन के, एंड इट डिकेड डाउन टू 2.1। ये इतने डिके क्यों हुए? क्योंकि आई आफ्टर 7.6 आई रिसीव दिस मच अमाउंट ऑफ अल्फा। हर रेडॉन एक अल्फा बनाएगा। अगर इतने अल्फा मुझे मिल रहे हैं, इसका मतलब है इतने ही रेडॉन भी डिके हुए होंगे। इनिशियल में से मैंने रेडॉन की अमाउंट माइनस कर दिया। आई गॉट द रिमेनिंग रेडॉन एटम्स that are there in the sample after 7.6 days. Using the number of radon 222 atoms present initially and the number of present after 7.6 days, calculate the half-life of radon. ठीक है, आपने हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन निकालनी। अच्छा जी, क्या बात कर दी आपने, अब सुनिएगा। 2.8 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 10 एटम्स से लाजमी सी बात है हाफ होने के बाद 1.4 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 10 हुए होंगे। फिर हाफ होने के बाद 0.7 टाइम्स 10 टू द पावर ऑफ 10 हुए। इस पूरे काम में इनको कितना देर लगी? इनको लगे 7.6 डेज। तो अगर दो हाफ लाइफ हुई है और दो हाफ लाइफ में 7.6 डेज का टाइम लगा है, तो हर हाफ लाइफ जो हुई होगी दैट वुड बी 3.8 days. Both of the half life must have been 3.8 days, and yet again that's the answer. Okay, the alpha particles become helium atoms which are collected in the vacuum shown in figure 10.1. Explain in terms of the properties of alpha why the wall of the inner glass tube must be extremely thin, because alpha has very less penetration power. Very less penetration power. अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर बहुत कम होती है, तभी हमें बहुत थिन रखना पड़ेगा ताकि अल्फा इजीली पास हो जाए। In some parts of the world, radon 222 accumulates in the air in buildings and is breathed in by people. Explain why the presence of alpha emitters in the lungs is particularly hazardous. Alpha particles lungs में जाएं बहुत नुकसानदेह क्यों हो सकते हैं? As alpha cannot pass through the body, they stay inside and cause serious health issues. एक तो हमारे पास अल्फा ना बहुत ज़्यादा उनकी पेनिट्रेशन नहीं होती, तो दे आर लाइक स्टेज इनसाइड और दे कैन कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। अच्छा जी, एक हमारे पास क्वेश्चन था, हम लोगों ने जो है तो तीन चीज़ें डिस्कस करनी है। एक क्वेश्चन हमारे पास पासमैन का बहुत ज़रूरी है। आई थिंक या इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेडियो वाला जो है क्वेश्चन नंबर 9, इनकी वर्किंग वर्डिंग देख लीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Figure 9.1 shows some parts of the nuclear reactor. Nuclear reactor as mentioned specimen में आया, it's very important. Maybe it can come in the paper. तो इस बात बिल्कुल भी लाइट नहीं लीजिएगा. It's not present in the past words, but that's very important. It can come in your examination. There are coolant control rods, moderators, fuel rods, coolants, and everything. The fuel rod contains uranium-235, which can undergo nuclear fission. Describe the process of nuclear fission that occurs in the fuel rod. Nuclear fission का process देखना है. Your description should include the role of neutron in the process. Okay. Since neutrons are absorbed by the nucleus of the uranium, which cause breakdown of the parent nuclei into daughter nuclei, releasing energy, and few more neutrons are released. बेटा वो जो process of हम लोगों ने nuclear fission पढ़ा था, that's what they want. इनने specifically
जो है न्यूट्रॉन्स का जो है रोल मांगा है, तो मैंने न्यूट्रॉन को ही बम्बार्ड करते हैं इन द न्यूक्लियस एंड देन न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं. दैट प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन आई एक्सप्लेन एंड वुड गेट 3 marks फॉर दिस. ये क्वेश्चन आ जाता है, जस्ट न्यूक्लियर फिजन, नथिंग टू बी वरीड अबाउट. Explain what happens as the control rod is moved out of the reactor core. अच्छा, अगर कंट्रोल रॉड्स जो है निकाल दी जाए, ठीक है, कंट्रोल रॉड्स मैंने बताया था कल के जो न्यूट्रॉन निकलते हैं ये उनको एब्जॉर्ब करती है ताकि उस रिएक्शन को आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए. तो अगर ये निकाल दिया जाएगा तो लेस न्यूट्रॉन्स विल बी एब्जॉर्ब विच कॉजेज मोर फिजन एंड चेन रिएक्शन विल occur. याद रखिएगा, लेस न्यूट्रॉन्स will be absorbed by the control rod. इसका मतलब क्या है? More neutrons will be present for fission, so. Or fission is a chain reaction, so it can lead to a chain reaction as well. Control rods are very important part of the nuclear reactor. Action. The nuclear reactor releases energy at a steady rate by referring to neutron. Describe what happens, what is happening to achieve a steady rate. अच्छा, बेटा हम क्या करते हैं? Basically, we make sure that one neutron is absorbed for like हर चीज के लिए एक एक न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो. वी मेक श्योर कि हमारे पास जो है 1 न्यूट्रॉन इज एब्जॉर्ब एवरेजिंग 1 पर यूनिट टाइम, ताकि हमारे पास जो है ज़्यादा रिएक्शन जो है आउट ऑफ कंट्रोल ना हो. एक बार फिर देख लेते हैं. पहले सवाल में उन्होंने बेसिकली बताया कि योर डिस्क्रिप्शन शुड इन्वॉल्व द रोल ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द प्रोसेस. तो आपने न्यूट्रॉन का प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि न्यूट्रॉन आर एब्जॉर्ब बाय यूरेनियम न्यूक्लियस. यूरेनियम न्यूक्लियस पे हिट करता है न्यूट्रॉन्स एंड देन इट ब्रेक्स डाउन, स्मॉलर न्यूक्लियाई क्रिएट करता है, फॉर्म करता है, एंड एक्चुअली रिजल्ट्स इन द वाटर न्यूक्लियाई टू बी फॉर्म रिलीजिंग एनर्जी, एंड देन विद दैट न्यूट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं. दैट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर ऑफ फिजन. बोलता है कि कंट्रोल रॉड को करेंगे, मूव आउट कर देंगे तो क्या होगा? these कंट्रोल रॉड्स जो न्यूट्रॉन निकलते हैं उनको एब्जॉर्ब करती हैं ताकि अगला रिएक्शन बार बार ना हो. अगर ये सारी कंट्रोल रॉड्स निकाल दूंगा तो जो न्यूट्रॉन इमिट होगा दैट कैन बी एब्जॉर्ब बाय द नेक्स्ट यूरेनियम रॉड एंड इट कैन लीड टू चेन रिएक्शन बार बार बढ़ता जाएगा एंड इट कैन लीड टू अ चेन रिएक्शन. तो दैट इज व्हाई कंट्रोल रॉड्स आर इन द लाइक प्लेस इनवर्ड्स, ताकि उस रिएक्शन को आउट ऑफ कंट्रोल ना हो. फिर बोलता है द न्यूक्लियर रिएक्टर रिलीजेस एनर्जी एट अ स्टेडी रेट बाय रेफरिंग टू न्यूट्रॉन्स. डिस्क्राइब what is happening to achieve this steady rate. तो इस steady rate को अचीव करने के लिए we make sure कि on average एक ही न्यूट्रॉन एक वक्त में एब्जॉर्ब हो ताकि ये रिएक्शन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो और एक steady rate अचीव हो जाए. मैंने शायद लास्ट टाइम भी बताया था बिल्कुल प्रीवियस लेक्चर में, what is the purpose of moderator in the nuclear reactor. जो moderator होता है बेटा इसका काम होता है to actually slow down the neutrons. यहाँ पे मॉडरेटर जो है कंट्रोल फ्यूल रॉड्स के साथ एक कार्बन का पूरा बना हुआ होता है ग्रेफाइट का. जो न्यूट्रॉन आ रहे होते हैं ना तो उसको थोड़ा स्लो डाउन करता है, दैट इट अलाउज द न्यूट्रॉन टू गेट एब्जॉर्ब बाय द फ्यूल रॉड. एक तो फ्यूल रॉड में एब्जॉर्ब होकर फिजन करवाएगा, कंट्रोल रॉड में एब्जॉर्ब होगा तो फिजन रोकेगा. तो ये जो मॉडरेटर है ना, जो इसके साथ ये जो व्हाइट कलर का डब्बा लगा हुआ है, इट्स बेसिकली हेल्प्स के भाई हमारी जो न्यूट्रॉन है उसकी स्पीड थोड़ी कम करे एंड अलाउस इट टू लाइक एक्चुअली बी एब्जॉर्ब बाय द फ्यूल रॉड ताकि फिजन हो पाए. तो इट स्लोज न्यूट्रॉन्स डाउन so they have a larger chance of being absorbed by another uranium nucleus. ये तो हमारे पास सवाल हो गया आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में. एक सवाल और जो 2024 के पेपर में आया था, दैट इज ऑल्सो रियली इम्पोर्टेंट. ठीक है, 2024 के पेपर में एक क्वेश्चन आया है दैट अगेन इसमें भी जो है कुछ स्पॉन्टेनियस वगैरह की वर्किंग थी और एक क्लाउड चेम्बर का सवाल था. What is meant by spontaneous emission? 2024 का पेपर
स्पॉन्टेनियस इमिशन याद करें, हम लोगों ने रैंडम और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पढ़ा था। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है ऑल, अच्छा, रेडियोएक्टिविटी has no effect of any external conditions such as temperature and pressure। जिस पार्टिकल ने एमिट होना है उस पार्टिकल ने एमिट होना है, कोई इफेक्ट नहीं होता कि रेडिएशन जो है प्रेशर बढ़ा दूं कम कर दूं, टेम्परेचर बढ़ाऊं कम करूं। तो रेडियो एक्टिविटी पे टेम्परेचर और प्रेशर एक्सटर्नल कंडीशंस का कोई इफेक्ट नहीं होता। दैट इज बेसिकली रेफर्ड टू स्पॉन्टेनियस इमिशन। डिस्क्राइब द कॉम्पोजिशन ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल में हमारे पास जो है दो प्रोटॉन होते हैं, दो न्यूट्रॉन होते हैं। दैट्स द कॉम्पोजिशन ऑफ अल्फा। अच्छा जी, फिर क्या बोलता है? Alpha particles are detected using the tracks shown in the cloud chamber by sparks produced in a, or by the sparks produced in the spark counter. Describe the structure of either a cloud chamber or spark counter, include the label diagram। अच्छा, हम लोगों ने अल्फा बीटा और गामा की जो है क्लाउड चेम्बर डायग्राम पढ़ी थी। अल्फा की जो रेडियोएक्टिव सोर्स में से इमिशन होती है, दैट्स लॉन्ग एंड स्ट्रेट लाइंस। आपने लॉन्ग एंड स्ट्रेट लाइंस बना देनी होती हैं, ठीक है जी। मेंशन कर देना होता है कि vapors in a cloud chamber due to ice and alcohol vapors, alpha can be seen as long and straight lines। ठीक है जी, ये हम लोगों ने क्लाउड चेम्बर का भी सवाल किया। Describe how the emission of alpha particle is shown as random in the apparatus you described in C1। They tend to come out in all directions। In all directions, एक तो random all directions में आ रही है, ठीक है। एक ये भी लिख सकते हो, नो पैटर्न कैन बी ऑब्जर्व्ड। कोई पैटर्न नहीं होता, जो चाहे पहले आ जाती है, कभी लंबी छोटी, एकदम 2 सेकंड रुक जाती है, फिर एकदम से बहुत सारी निकल जाती है। दैट्स व्हाट हैपेंस इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। लेक्चर नंबर 3 लाजमी देख लीजिएगा, उसमें न्यूक्लियर ये जो क्लाउड चेम्बर है उसकी मैंने वीडियो भी दिखाई थी, इट्स कंप्लीट, उसमें सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। द रेडियो एक्टिव सोर्स produces 120 tracks in 1 minute in a cloud chamber। 6 hours later, the same source produces 15 tracks। Without the source present, no tracks are produced। Calculate the half-life। अच्छा, 120 tracks से पहले 60 हुए होंगे, 30 हुए होंगे, 15 हुए होंगे। 120 से 60 हुए, फिर 30 हुए, फिर 15 हुए, 3 हाफ लाइफ हो गई। 3 हाफ लाइफ टोटल 6 आवर्स में हुई, तो हर हाफ लाइफ हमारे पास लाजमी सी बात है 2-2 घंटे में हुई होगी। तो विद दैट मैंने यहाँ पे एक बात बता दी कि हाफ लाइफ इज 2 आवर्स, बिकॉज 3 हाफ लाइफ थी एंड टोटल टाइम इज 6 आवर्स। देयरफॉर एक हाफ लाइफ का जो टाइम होगा दैट वुड बी